Now we'll see factors of soil formation. The major factors of soil formation are the nature of the parent rock and climatic factors. जो parent rock है वो और climate factors की वजह से उसका formation हुआ है soil का. Other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation. जो time लिया है उसको form करने में. All this differ from place to place. See soil, here you can see parent rock determines color, texture, chemical properties and mineral content, permeability, then relief. Altitude and slope determine accumulation of soil, then flora, fauna and microorganism affect the rate of humus formation. Time determines thickness of soil profile, or climate, temperature, rainfall influence the rate of weathering and humus formation. All these are the factors affecting soil formation, जिसकी वजह से soil formation affect करता है. Degradation of soil and conservation measures. Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. You all know soil erosion, the washing out of soil because of rain or rainwater, etc. Both human and natural factors can lead to degradation of soil. Both factors are affecting, whether it is human or natural, they affect degradation of soil. Factors which led to soil degradation are deforestation. Factors which are leading to soil degradation, जो soil कम हो रही है, that is deforestation, मतलब trees कम है तो overgrazing, overuse of chemical fertilizer or pesticides, rain wash, landslides and floods. See, all these are the reason for soil degradation. Some methods of soil conservation are listed below. We'll see some methods of soil conservation. That is, first is mulching. The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. Straw जैसे एक organic matter होते हैं bare ground, मतलब जो खाली ऐसे ground होता है उसमें, तो क्या करता है, retain करता है soil moisture को, उसमें वो help करता है. Counter barriers में stones, grass, soil, they are used to build barriers along counters, and trenches are made in front of the barriers to collect water. Counter barrier, that is the outline, we can call that outline जो होता है वो stones है, grass है, soil, they are used to build barriers. मतलब एक limitation हो जाए ऐसे counters हम बना सकते हैं, मतलब outline बना सकते हैं. Trenches are made in front of the barriers, और ये जो barriers हम बना रहे हैं तो उसके आगे हम trenches जो है बना सकते हैं, जैसे खाई, ट्रेंचेस मतलब कि खाई, तो खाई जैसा हम बना सकते हैं ताकि हम वाटर कलेक्ट कर सके. नाउ रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. वाटर का फ्लो कम हो जाए इसीलिए उसे रखा जाता है. डैम्स तो आप सबने देखे हुए हैं. दिस प्रिवेंट्स गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस, मतलब सॉइल लॉस इससे कम हो सकता है. देखो काउंटर प्लाविंग और टेरेस फार्मिंग जिसको बोलते हैं, पिक्चर्स आर गिवन. Terrace farming, broad flat steps or terraces are made on the steep slopes, मतलब जो ऐसे स्लोपी वगैरह हैं, so that flat surfaces are available to grow crops, और ताकि एक flat surface मिल जाए और crop को grow कर सके. They reduce surface runoff and soil erosion. इसकी वजह से क्या होता है कि जो surface runoff है, मतलब जो layer है soil का वो ख़राब भी ना हो, मतलब जो वॉश नहीं हो रहा है, और सॉइल इरोजन भी नहीं हो रहा है. सो इट इज़ नेसेसरी टू मेक इट. एक ढलान जैसा कहते हैं हम, जो स्लोप्स है वो मतलब कि एक ढलान जैसा, ऐसे एक छत जैसा बना करते हैं ताकि उस पर अच्छे से प्रोडक्शन हो सके. इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश. क्रॉप्स जो है ऑल्टरनेट रोज में ग्रो होते हैं
ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके और हम रेन वॉश की वजह से सॉइल को बचा सकते हैं। काउंटर प्लविंग, तो प्लविंग पैरेलल टू द काउंटर्स of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope। काउंटर प्लविंग का मतलब होता है कि हम एक ऐसी आउटलाइन जो है वो बना रहे हैं हिल स्लोप के, ताकि नेचुरली वो ऐसे ही मतलब जो वाटर है उसको स्लोप की वजह से फ्लो डाउन होने की वजह से हम बचा सकते हैं। आप जो फिगर 2.6 है उसमें देख सकते हो। शेल्टर बेल्ट्स हैं इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, जो कोस्टल मतलब जो सी कोस्ट है वहाँ पे, और ड्राई रीजन्स होते हैं। रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। सी हियर यू कैन सी कि एक ही लाइन में, एक ही रो में कैसे ट्रीज ग्रो किए हैं, सो दैट वी कैन नो द विंड मूवमेंट, क्योंकि विंड की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। नाउ विल टॉक अबाउट वाटर। इट्स अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जो अर्थ सरफेस है वो 3/4 पार्ट दैट इज कवर्ड विद वाटर, एंड देयरफॉर वी कॉल द वाटर planet. It was the primitive ocean that life began almost 3.5 billion years back. 3.5 billion years back लाइफ बिगिन हुई। इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। 2/3 जो है वो ओशंस कवर करते हैं अर्थ सरफेस पे, एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन, मतलब सॉल्टी है, एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, सो वी कांट कंजप्ट दैट सॉल्टी वाटर। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। 70% वाटर में से सिर्फ 2.7% है फ्रेश वाटर दैट वी कैन कंज्यूम। Nearly 70% of this occurs as ice sheet and glaciers in Antarctica। हम देख सकते हैं कि आइस शीट जो बर्फ से बनी एक शीट जैसा होता है, या ग्लेशियर्स है हिमालयन माउंटेन्स जैसे, तो ये जो माउंटेनियस रीजन है अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, वहाँ पे उसी से कवर्ड है वो। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर inaccessible। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, मतलब कौन से तरीके से मिलता है, तो ग्राउंड वाटर, surface water in rivers and lakes, and as water vapor in the atmosphere. This much is fresh water. Now fresh water is therefore the most precious substance on earth। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड, ना ही हम उसे कम कर सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं अर्थ के अंदर से। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इट्स अबेंडेंस ओनली सीम्स टू वेराई बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन। एक मोशन है जैसे साइकिलिंग थ्रू द ओशंस, एयर, द लैंड एंड बैक अगेन। वाटर साइकिल के बारे में आप पढ़ चुके हो। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, precipitation and runoff। This as you already know is referred to as the water cycle। आप बहुत अर्लियर पढ़ चुके हो वाटर साइकिल, so that you know how fresh water is continue on the earth। Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the processes of production। सिर्फ ड्रिंकिंग वॉशिंग या हाउस होल्ड कोर्स के लिए ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे पर्पसेस हैं जहाँ पे वो यूज़ होता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स आर दी अदर यूसेजेस। ये सारे डिफरेंट यूजेज है उसके, ड्रिंकिंग और वॉशिंग मतलब हाउस होल्ड कोर्स के अलावा। Increasing population, rising demand for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortages in supply of fresh water। ये जो population increase हो रहा है जिसकी वजह से food demand increase हो रहा है, cash crop, urbanization increase हो रहा है, तो उसकी वजह से ये सब अफेक्ट कर रहा है फ्रेश वाटर के ऊपर, जो उसका सप्लाई है उस पर अफेक्ट कर रहा है। एंड सप्लाई नाइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन, मतलब वाटर पॉल्यूशन भी अफेक्ट करता है उसको। तो ये सारा हम यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं। एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेज अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, मतलब आप देख सकते हो कि वो कैसे यूज़ करते हैं। Now we'll see problems of water availability. There is scarcity of water in many regions of the world। हमारे वर्ल्ड में बहुत वाटर की स्कैरसिटी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, parts of South America and entire Australia are facing shortages in fresh water supply। See all this
प्लेसेस, ये जो भी सारी कंट्रीज़ दिखाई है वहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई की बहुत शॉर्टेज है। एंड कंट्रीज़ लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्राउट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्केर्सिटी, मतलब ऐसे जो जोन्स में हैं वो एक वाटर स्केर्सिटी फेस करते हैं। दस वाटर शॉर्टेज में बी अ consequence of variation in seasonal or annual precipitation of the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources। अगर वाटर रिसोर्स कंटेमिनेट हो रहे हैं, जो फ्रेश वाटर वगैरह अवेलेबल है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की वजह से, तो बहुत इफेक्ट करता है।